Dear students, today our topic is osmosis. Let's first look at the definition of osmosis. Osmosis क्या है? Osmosis is a process by which molecules of solvent, ये याद रखने की बात है, molecules of a solvent pass from a solution of low concentration to a solution of high concentration through a semi-permeable membrane. तो इस definition को हम कैसे understand करेंगे? We'll take an example. Now let's see, this is a container. एक कंटेनर हमने लिया, इस कंटेनर के बीच में हमने एक मेम्ब्रेन डाला, ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. फर्स्ट, व्हाट इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, किसको हम कहेंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स एंड नॉट ऑल. जैसे कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कुछ मॉलिक्यूल्स इससे पास हो जाते हैं और कुछ नहीं. सो it allows only the passage of certain molecules. इसी तरह से हमने एक यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिया है इस कंटेनर के बीच में. ना इस साइड भी हमने एक सोल्यूशन बनाया है सॉल्ट का फॉर एग्जांपल, और इस साइड का भी. लेकिन इस साइड में जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है दैट इज लो, और इस साइड में सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है दैट इज हाई. So this is low concentration solution of salt, and this is very high very concentrated solution of salt. So according to definition, water solvent will pass. So during osmosis the solvent will pass, not the solute. So solvent here is water. Water will move from the low concentration solution to high concentration solution. This was the low concentration solution and this was the high concentration solution. So solvent will move from low concentration solution to a high concentration solution. ठीक, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये तब तक वाटर या सॉल्वेंट मूव होता रहेगा फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन till balance is reached, till equilibrium is reached, and that's this. जब यहाँ पे भी हमें वैसी ही कंसंट्रेशन साल्ट की होगी और यहाँ पे भी वैसी ही साल्ट की कंसंट्रेशन, दोनों साइड से साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो एक जैसी हो जाएगी, सोल्यूशन जो है उसकी कंसंट्रेशन एक जैसी हो जाएगी. उस टाइम पे मोमेंट ऑफ वाटर विल स्टॉप. So osmosis is a process wherein the solvent molecules pass from a low concentration solution to a high concentration solution, from a low concentration solution to a high concentration solution. और एक definition से हम ये समझने की कोशिश करेंगे what is osmosis. That is this. It involves the movement of molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane is important. Now यहाँ अगर हम सॉल्वेंट की बात करेंगे, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इस साइड ज्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन इस साइड ज्यादा है, और इस साइड सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और वाटर की कम. सो वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम इट्स lower higher concentration to lower concentration. So water molecules or solvent molecules will move from its higher concentration to lower concentration, क्योंकि वाटर की जो concentration है वो इस साइड ज्यादा होगी और इस साइड कम होगी. सो वाटर जो है यहाँ जो सॉल्वेंट है इट विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. यहाँ पहली डेफिनेशन जो हमने बोली वो भी यही है. Solvent molecules, water molecules will move from this less concentrated solution to a very high more concentrated solution. So ultimately the result will be this, we will have two solutions, इस side और इस side जो दो solutions हमारे पास थे, they will have similar concentration, उनकी concentration same होगी, और इस moment पे जो है water movement from one side to another side of the membrane it will stop. And this osmosis it is a passive process. ये passive process होती है. There is no expenditure of energy, कोई energy इसमें energy खर्च नहीं होती है. तो ये कैसे होता है, it takes place along the concentration gradient. जो concentration gradient एक साइड से highly concentrated solution है, एक साइड से low concentration solution है, तो उस वजह से ये मूवमेंट हो जाता है, तो इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है. Now
Let's see, there are three types of osmotic solutions. There are three types of osmotic solution. For example, अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करेंगे, हम एक कंटेनर लेंगे, उसमें हम एक सोल्यूशन डालेंगे, ठीक, एक सोल्यूशन बनाएंगे और उसके अंदर हम एक सेल डालेंगे, लेट से प्लांट सेल, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है ऐसे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट व्हाट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। लेकिन आइसोटोनिक सोल्यूशन समझने से पहले कि हमारे सेल के अंदर भी वाटर होता है और उस वाटर में भी डिफरेंट सल्यूट्स या डिफरेंट साल्ट्स वगैरह जो है वो डिजॉल्व किए होते हैं। नाउ ये समझना जरूरी है। सो वी हैव सोल्यूशन इनसाइड द सेल, सेल के अंदर भी सोल्यूशन ऑलरेडी होता है, साल्ट्स डिजॉल्व हुए होते हैं वाटर में। नाउ लेट्स सी दिस। An isotonic solution is one that has the same concentration of solutes both inside and outside the cell. अब हमने एक सेल, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने एक सेल डाली। अब सेल के अंदर जो सोल्यूशन है और सेल के बाहर जो सोल्यूशन है, सेल के अंदर जो सोल्यूशन है और सेल के बाहर जो सोल्यूशन है, उनकी कंसंट्रेशन एक जैसी है। उनमें जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन एक जैसी है, सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन एक जैसी है। सो इससे क्या होगा, देयर विल बी नो नेट लॉस और गेन ऑफ वाटर। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल अंदर से बाहर निकलेगा, यहां से भी एक अंदर जाएगा। सो ओवरऑल देयर इज नो नेट मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नो नेट लॉस और गेन। सो सेल जैसी थी वैसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। There will be no net loss or gain. So an isotonic solution is one that has same concentration of solutes both inside and outside of the cell. अगर हमने सेल डाली इस सोल्यूशन में, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ऐसी है जितनी जैसी कि सेल के अंदर। सो देयर विल बी नो नेट लॉस और गेन ऑफ द solutes or solvents, sorry, these solvents. Then we have hypertonic solution. What is hypertonic solution? अब और एक solution है। A hypertonic solution is one that has higher solute concentration outside the cell than inside. अब एक सेल हमने, ये सेल है, ये हमने डाली है एक सोल्यूशन में, मगर इस सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है दैट्स वेरी हाई, इसमें सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है दैट्स वेरी हाई आउटसाइड देन इनसाइड द सेल। तो उससे क्या होगा, सोल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, तो the water molecules will move from a low solution, less concentrated solution to a more concentrated solution, or water molecules will move from their higher concentration to the lower concentration. अंदर water की concentration ज़्यादा है, बाहर water की concentration कम है. So water molecules will move out from their higher concentration to the lower concentration, or water molecules will move from less concentrated solution to a very हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन. तो अंदर लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है क्योंकि बाहर हमने बहुत सारा साल्ट डाला है और बाहर जो है साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो वाटर विल कम आउट ऑफ द सेल्स. दिस देयर विल बी नेट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल. सेल से बाहर आएगा वाटर एंड द सेल इट विल श्रिंक. Cell will shrink. So in case of isotonic solution there is no change in the shape of the cell, while as in hypertonic solution, as the water will come out, the cell will shrink. Then we have a third type of solution is hypotonic solution. It is the one that has higher solute concentration inside the cell than outside. तो ये ऐसा है कि सेल के अंदर जो सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द आउटसाइड. आउटसाइड में जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द सोल्यूशन इनसाइड द सेल, उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है. सो वी हैव इनसाइड द सेल द सोल्यूशन इज कंसंट्रेटेड and outside the cell the solution is less concentrated. So what will happen in this, the water will enter the cell, water will move from its higher concentration to lower concentration, or water will move from the low concentrated solution to a high concentration solution. And ऐसी हालत में क्या होगा, water will, as water will enter the cell it will swell. सेल जो है वो स्वेल हो जाएगी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में. सो तीन सोल्यूशन जो हमारे पास हैं. आइसोटोनिक सोल्यूशन में अगर हम एक सेल को डालते हैं तो सेल में नेट लॉस और गेन ऑफ वाटर नहीं होता है, और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर हम डालेंगे तो उसमें क्या होगा,
उसमें सेल से पानी जो है वो बाहर आएगा और सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगी। और अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हम सेल को डालते हैं तो उसमें वाटर एंटर करता है और सेल जो है इट बिकम्स वेरी टर्जिड, बहुत ही स्वेल हो जाती है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस की जो टाइप्स है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, वन इज एंडोस्मोसिस एंड सेकंड इज एक्सोस्मोसिस। तो अगर हम जो हमने अभी आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ी, वैसे ये भी हैं एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। जब वाटर मूव करेगा इनसाइड द सेल, कब करेगा मूव? व्हेन यू आर हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड देन इन द इनसाइड। जब हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम एक सेल को डालेंगे, द वाटर विल मूव इनसाइड द सेल, वाटर सेल के अंदर जाएगा एंड द सेल विल बिकम टर्जिड, इट विल स्वेल। तो इस ऑस्मोसिस, इस तरह की ऑस्मोसिस को हम एंड ऑस्मोसिस कहते हैं, इसको हम एंड ऑस्मोसिस कहते हैं। वाटर एंटर्स द सेल, एंड ऑस्मोसिस। ठीक। तो उसके बाद दूसरी टाइप है एक्स ऑस्मोसिस। एक्स ऑस्मोसिस में अगर हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम डालते हैं तो वाटर जो है सेल से बाहर आ जाता है। तो अभी हमें देखना है कि वेदर द वाटर एंटर द सेल और लीव सेल, उस बेसिस पे हमारे पास एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस है। सो व्हेन वाटर एंटर द सेल इट इज एंडोस्मोसिस, इट जनरली टेक्स प्लेस व्हेन यू हैव अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है देन द वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल, सेल विल बिकम फ्लैशिड। तो उस वजह से क्या होगा, इसको हम एक्सोस्मोसिस कहते हैं। So exosmosis makes the cell flaccid. As the water is lost, vacuole shrinks, cell loses its shape, and when water enters the cell, it's known as endosmosis, and the vacuole swells and it pushes against the cell wall, making the cell turgid. Then we have significance of osmosis. What is the importance of osmosis in case of plants? So it is responsible for the absorption of water from the soil and conducting it to the upper parts plant through the xylem. So जो water absorb होता है from the soil, और जो ये जैसे दूसरे डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचता है वाटर थ्रू जाइलम, ऑस्मोसिस प्लेज है इम्पॉर्टेंट रोल। तो वाटर एब्जॉर्प्शन में ऑस्मोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट्स में। इट स्टेबलाइज द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गन बाय मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन वाटर एंड इंटरसेल्युलर फ्लूइड स्पेसिस। तो ये बैलेंस भी क्रिएट करता है, जो सेल्स के अंदर जो वाटर है और बाहर जो वाटर है, उन उन दो में ये बैलेंस करता है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट्स इनसाइड द सेल इंक्रीजेस देन वाटर विल मूव इनसाइड द सेल्स। अगर ये डिक्रीज हो जाते हैं देन वाटर विल कम आउट ऑफ द सेल। सो इट मेंटेन्स द बैलेंस, इट मेंटेन्स द टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स। जो टेल्स की टर्जिडिटी है उसको ये मेंटेन करते हैं, बिकॉज टर्जिडिटी हैज डिफरेंट roles in plants. For example, opening of the leaves, opening of the flowers, it is because of turgidity, and that turgidity is maintained by osmosis. Then it is a process by which plants maintain their water content despite the constant वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपरेशन। ट्रांसपरेशन से यूं ही वाटर लॉस होता रहता है, लेकिन सेल्स जो हैं अपने अंदर वाटर की जो बैलेंस वो मेंटेन करते हैं, वो अपने अंदर वाटर मेंटेन करते हैं बाय उनमें जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, एंड देन दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मेंटेन द इंटरनल वाटर कंटेंट। और सेल टू सेल डिफ्यूजन ऑफ द वाटर जो है वो भी ऑस्मोसिस से ही होता है। Osmosis induces cell turgor and which regulates the movement of plants and plant parts। तो टर्गर प्रेशर जो पहले भी मैं कह चुका हूँ, जो टर्गर प्रेशर रेगुलेट होता है ऑस्मोसिस से, वाटर जब सेल के अंदर हो जाते हैं तो सेल जब टर्जिड होती हैं, इट एनेबल्स द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीव्स में जो जो अगर आप देखोगे, आप मेज प्लांट देखा होगा, उसमें लीव जो है रोल हो जाती हैं इनवर्ड्स, या बाहर की तरफ भी ओपन हो जाती है लीव्स। दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस। जब सेल्स टर्जिड होती हैं तो लीव्स ओपन होते हैं, और वेल सेल्स फ्लैशिड हो जाती हैं वाटर लॉस की वजह से, देन दे रोल इनवर्ड्स। ऑस्मोसिस आल्सो कंटेन्स डेसेंस ऑफ फ्रूट्स।
फ्रूट्स जो हैं प्लांट से जब डिहिसेंस होते हैं, उनकी गिरते हैं, या स्पोरेंजा जब बर्स्ट होते हैं और स्पोर्स स्प्रेड हो जाते हैं, ऑस्मोसिस हैज एन important role in that as well. Higher osmotic pressure protects plants against drought injury. और osmotic pressure जो है या osmosis जो है, it also plays a role in during drought में जो osmosis है, because different solutes are accumulated within the plants, तो वो water retain करते हैं, उस वजह से जो ड्राफ्ट इंजरी है, ड्राफ्ट की वजह से इंजरी हो सकती थी प्लांट में, क्योंकि बहुत वाटर लॉस होता है ड्यूरिंग ड्राफ्ट, तो वो इंजरी बचाता है बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज डेवलप्ड व्हेन वी हैव मोर दिस स्लूट सिंथेसाइज्ड विद इन द प्लांट्स. तो ये हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस. इसमें से अगर आप 3-4 पॉइंट्स भी याद रखते हो अच्छे से, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ड्यूरिंग द एग्जाम. थैंक यू वेरी मच.